कैसे मेजर किया जाता है और उसके कौन कौन से यूनिट है। फर्स्ट है डिग्री एंड सेकंड है रेडियन। अब इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। उसके लिए हमें एक थ्योरम दिया है, द रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह हमें प्रूव करना है। सो उसके लिए हम एक सर्कल कंसिडर करेंगे इन द प्रूफ। लेट अस कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर एट O। एक सर्कल लिया है हमने विच इज एट सेंटर एट विच हैज द सेंटर एट O। देन AB be the its arc length। देन join these points। कौन से पॉइंट ज्वाइन करने हैं हमें? A और B। Then A will consider radius है R and again OB radius R and arc length will be again R. Then according to radian measure, the measurement of an angle at the center of the circle which is created by the arc length whose radius is equals to radius of that circle. Therefore, we can write the measurement of that angle AOB is equals to 1 radius. हमें अब प्रूफ में लिखना है लेट कंसिडर अ सर्कल with center at O. Then AB be the arc length whose length is equals to radius of that circle. Then we created OA and OB. Then we can write and radius OA and OB such that or which is equal to R. Then अब हमें उसे ये जो OA का पोर्शन है उसे प्रोड्यूस करना है अप टू C। देन सी हियर हम एंगल AOC देन join O at point C such that measurement of angle AOC is equals to AOC क्या बन गया है अब एक स्ट्रेट एंगल एंड मेजरमेंट इज इक्वल्स टू 180। दैट इज इट इज इक्वल्स टू 2 right angle। See here, this is one and this is second. So measurement of angle AOC is equals to 2 into right angle। दो right angle के मेजरमेंट जितने रहते हैं उतना ही measurement of angle AOC। Then as we know that the measurement of an angle is proportional to its arc length। See here, measure अब यहाँ पर कौन सा एंगल है AOB, उसकी आर्क लेंथ कौन सी है? दिस लेंथ ऑफ AB। सो एज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू इट्स आर्क लेंथ, देन वी कैन राइट measurement of angle AOB divided by अब दूसरा एंगल कौन सा है? मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC which is equals to which are proportional to फर्स्ट की आर्क लेंथ कौन सी है? लेंथ ऑफ आर्क AB होल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क ABC। So then we can write measurement of angle AOB कितना है? measurement of angle AOB is equals to 1 radian and measurement of angle AOC we have right here 2 into right angle। ये हम लिखेंगे and which is equals to length of arc AB कितनी है? R and now length of arc ABC। See here, length
of arc ABC. So for this, we have to know that what is the circumference of circle. ये जो पूरी circumference रहती है सर्कल का, उसका आंसर कितना रहता है? Circumference of circle is equals to 2 pi r. But for arc length ABC, we have its half, that is 1 by 2 pi r. That is arc length of ABC, ये पूरे सर्कल के कितने रहेंगे? हाफ, that is 1 by 2 pi r. So we can write this 1 by 2 into 2 pi r. So this 2 get cancelled and again r get cancelled. So remaining क्या रहता है? ये अब मैं ये रजिस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर लिखना है हमें. So 1 radians is equals to 2 into राइट एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहता है? 1 डिवाइडेड बाय पाई. सो वी कैन राइट इट एज, पाई को हम इधर ले जाएंगे, सो क्या होगा वो? पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 2 into 90, यहाँ पर आएगा और क्या हो जाएगा? 1 into this 180 degree. Therefore pi radians is equals to 180 degree. यही हमें प्रूफ करना था. That is the radian is independent of the radius of the circle, and we have proved that pi radians is equals to 180 degree. So student, इस थ्योरम में हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है? First of all, we prepared the one consider circle center at O and having arc length AB. Then हमने AO और OB को join किया है, which are radius of that circle, which is equals to R. Then according to radian, measurement of AOB is equals to लिया है 1 radian. Then again we have produced ये जो AO है, हमने उसे join किया है up to point C. Then such that measurement of angle AOC, कौन सा एंगल बन गया है? It is straight angle, that is 2 into right angle. Then as the measurement of angles are proportional to its arc length, then this angle AOB proportional to arc length AB, and angle measurement of angle AOC proportional to arc length ABC. Then but circumference of circle is equals to 2 pi r. और ये जो आर्क लेंथ है ABC, हमें उसे कितना लेना चाहिए? हाफ इंटू 2 pi r. ये लिया है, बाद में हम सॉल्व करने के बाद यहाँ तक पहुंचे. पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये पढ़ने के बाद हमें रिलेशन ध्यान में रखना है, एंड इसके ऊपर जो एग्जांपल्स है, हाउ टू कन्वर्ट एंड डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर एंड रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, ये हमें एग्जांपल करने. अभी हमने एक नोट देखेंगे. अभी हमने पढ़ा है पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम ऐसे लिखेंगे उसे 1 रेडियंस इंटू पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन 1 रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. दैट इज 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. इसका मतलब है अगर हमें एक रेडियन मेजर दिया है, सो हम उसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए इससे 180 डिवाइडेड बाय पाई. इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 180 डिवाइडेड बाय पाई. सिमिलरली अगर ये हम ऐसे लिखते हैं 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इंटू 180 इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस. देन अगेन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180. सो उसका कन्वर्जन हो गया रेडियंस में. तो हियर अगर डिग्री मेजर दिया है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? पाई डिवाइडेड बाय 180. देन अगर एक डिग्री मेजर दिया है और उसे हमें कन्वर्ट करना है, तो कौन से मेजर में? रेडियन में. तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए पाई डिवाइडेड बाय 180.
यहाँ पर हम लिख के रखेंगे अगर सीयर डिग्री को कन्वर्जन करना है, एक मिनट, हम इसे ऐसे ध्यान में रखेंगे, डिग्री और उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन मेजर, देन वी हैव टू डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा पाई डिवाइडेड बाय 180। किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? पाई डिवाइडेड बाय 180। एंड उसके अपोजिट अगर हम रेडियन को, एक्सरसाइज में इसके ऊपर एग्जांपल है और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी एग्जांपल पूछेंगे आपको, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। देन रेडियन में जो है और हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, तो वहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये आपको ध्यान में रखना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन, पाई डिवाइडेड बाय 180 एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्जन, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 180 इनटू पाई। ये है रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। देन नेक्स्ट है अब हम एक्सरसाइज 1.1 के सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 determine which, question है determine which of the following pair of angles, which of the following pairs of angles are coterminal। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोटर्मिनल एंगल्स क्या होता है पता होना चाहिए। कोटर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स इन विच इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर इन सेम पोजीशन बट हैविंग डिफरेंट मेजरमेंट। वहां मैंने डेफिनेशन बताते वक्त ये बताया था कि आपको अगर दो एंगल दिए हैं, फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है, फिर हम सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट पेयर कौन सा दिया है 210 डिग्री एंड सेकंड दिया है -150 डिग्री। सो हम जो बड़ा एंगल है उसमें से छोटा एंगल यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि इट इज एट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आता है कि नहीं। अगर इट इज एट उन दोनों एंगल की सब्ट्रैक्शन मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आती है तो हम उस पेयर को क्या बोलेंगे, कोटर्मिनल एंगल्स। देन we can see here बड़ा वाला एंगल कौन सा है 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री which is equals to एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 210 प्लस 150 डिग्री is equals to we get 360 डिग्री addition of these two and which is into 1 this multiple of 360। therefore here हम लिखेंगे इट इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। therefore given pair of angles are coterminal ऐसे आपको लिखना है। ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ऐसे हम और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड वाला एग्जांपल है 360 डिग्री -30 डिग्री। अगेन सेम प्रोसीजर, 360 डिग्री में से हमें माइनस करना है -30 डिग्री, देन इट विल बी 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, then 390 degree. So here it is a not multiple of 360 degree.
देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore given pair of coterminal, given pair of angles is or are not coterminal। ऐसे हमें लिखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक पेयर दिया है, इस एग्जांपल में हमें चेक करना है बड़े एंगल से छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। देन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो 360 डिग्री का मल्टीपल आता है कि नहीं। अगर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री देन द गिवन पेयर ऑफ एंगल इज कोटर्मिनल, और अगर वो मल्टीपल में नहीं आता है तो हमें ऐसे लिखना है इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट अ कोटर्मिनल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम एक्सरसाइज। यहाँ पर स्टूडेंट्स और 4 एग्जाम्पल है, वो आपको घर पर होमवर्क में सॉल्व करना है ऐसे जैसे मैंने सॉल्व करके दिया है। और अब हम सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सीयर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, ड्रॉ 1 में ही है, वो अभी सॉल्व किया वो क्वेश्चन नंबर 1A था, अभी B वाला। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट्स। हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ the following measures of the following measures and determine the quadrant, and we have to here determine the quadrant. So पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर। सब एंगल की मेजरमेंट दिए हैं, वो हमें अभी ड्रॉ करना है और बाद में क्या करना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं वही डिटरमाइन करना है। सो फर्स्ट हम लेंगे, फर्स्ट है -140 डिग्री। इसके लिए हमें एक्स वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा। सीरियर ऐसे एक्स डैश वाई वाई डैश। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि गिवन एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हम उसकी डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। कौन सा, अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो हमें उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कौन सा है, -140 डिग्री। ऑब्वियसली डायरेक्शन कौन सा आएगी, इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन अब 140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सीरियल यहाँ से स्टार्ट करेगा एंगल रोटेट होने के लिए, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में और कितना ऐड करना पड़ेगा कि 1 -140 डिग्री। सो यहाँ पर आएगा यहाँ 50 डिग्री। सो हम इसे लिखेंगे 140 डिग्री, दैट इज -140 डिग्री यहाँ पर आएगा। और एज वी नो दैट फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे लिखना है। यहाँ पर एक इनिशियल आर्म है along the positive x-axis and terminal arm will be present in here third quadrant, because the measurement of given angle is -140 degree. So ऐसे एंगल आएगा वो -140 डिग्री। और एक पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने ड्रॉ किया है जो मेजर दिया है उसका एंगल। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में। सो हम उसे लिखेंगे, देयरफॉर गिवन मेजर ऑफ एन एंगल is present in
थर्ड क्वाड्रेंट। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट आपको ऐसे जो अदर्स एंगल के मेजर दिए हैं वो ड्रॉ करने हैं और ऐसे आंसर लिखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। सो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट वन थ्योरम इट इज डिपेंड ऑन पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर देखा और देन वी हैव फ्रॉम अक्रॉस दी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अब हम उसमें से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके दो एग्जांपल मैंने सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो सेकंड था उसका एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिया है। आपको आइडिया आई होगी कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसे जो अदर एग्जांपल है वो आपको होमवर्क पे सॉल्व